Hello students. I am Amreen and I will be teaching you sociology for your CUET PG MA sociology examination. And this is our lecture number 1, which is directed to give you a little bit of orientation of how this program is going to be, right? So first of all, before giving you the orientation, I would like to tell you about myself. Like I told you, my name is Amreen and I have done my graduation, that is BA in sociology, MA in sociology, and currently I am pursuing my PhD in sociology, right? And my bachelor's is from Chandigarh and master's is from Central University of Punjab. So I will be teaching you on how to prepare for your CUET PG MA Sociology examination on Shakuntas. And this is our orientation class where I will direct you how we are going to go about doing this, right? So I will tell you about a few things. Now, the first of that is syllabus distribution. We will first look at how your syllabus has been distributed. Next, we will look at the topic-wise weightage. That is, which topic will has how many marks and which topic is more important than other topics, right? So we will look at that. Then next we will look how to prepare. Now this is also extremely important. Sometimes we know the topic, हमें पता होता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता हमें कि कैसे पढ़ना है. तो how to prepare is very much important. As much it is important to know the syllabus, उतना ही important है how to prepare, right? And finally, I'll tell you how we at Shakuntas will help you to prepare for your CUET examination. So without wasting any time, let's start. Now first I'll show you the syllabus. Now if you look at the syllabus, first is basic concepts of sociology, in which we have your definition of sociology, nature and scope, relationship with other social sciences, psychology, anthropology, history, economics and political science. This will cover your basics. Then concepts like social structure, society, social organization, community, association and norms and values. ये सब क्या होते हैं? So I'll explain in detail to you about their definitions, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में सीधा सीधा डेफिनेशन ही आ जाती है. Then I'll explain their scope and I'll explain their usage in the society. All of these are very, very important. Then we have your unit 3, in which we have status and role, types of statuses and roles and their interrelationship. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपने अपनी ग्रेजुएशन में देखे हुए होंगे, राइट? लेकिन हम उनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, बिकॉज अभी आपकी एग्जामिनेशन है तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए. Then unit 4, socialization, theories of self, that is Freud, Poulet and Mead. Then culture and the theories related to culture, right? All of these are very, very important topics. I'm sure आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत idea already होगा in your BA. So I'll help you to understand it a bit more, but I'll be doing it right from basics. राइट, बिकॉज देर आर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आप बिना बीए सोशियोलॉजी के भी मास्टर्स में ले सकते हो एडमिशन. तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बैचलर्स में की ही नहीं है सोशियोलॉजी, हम उनको भी अच्छे से समझाएं, राइट. नेक्स्ट वी हैव सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स, जिसमें कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट है. देन हमारे सोशल ग्रुप्स हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और सोशल कंट्रोल और डेविएंस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं. देन वी हैव कल्चर एंड सोशल चेंज, जिसमें हम सोसाइटीज की टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कल्चर उसकी टाइप्स देखेंगे, सोशल कंट्रोल और सोशलाइजेशन देखेंगे. फाइनली हम प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सोशल चेंज का पार्ट हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी सोसाइटी प्राइमरी सोसाइटी से चेंज होके कुछ और बन गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन इन योर यूनिट 4 यू हैव सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, टाइप्स, थ्योरीज एंड स्ट्रैटिफिकेशंस एंड सोशल मोबिलिटी और उसकी टाइप्स क्या होती है. लेकिन आगे और भी थोड़ा सा सिलेबस है. मुझे लगता है कुछ लोगों को सिलेबस देख के चक्कर आने लग जाते हैं. ऐसी बात नहीं है, जब आप पढ़ोगे यू विल फाइंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर आप अपने मास्टर्स में इसको इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट है. दिस टॉपिक इज this entire subject is very very interesting, right? So you'll enjoy through it and I'll make it enjoyable. Then Indian society, very important, जिसमें हम evolution देखेंगे, कास्ट सिस्टम्स देखेंगे, सोशल चेंज के प्रोसेसेस जैसे वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पेरोकियाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन हो गए. देन हमारे सोशल इश्यूज और प्रॉब्लम्स, जो कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं.
देन वी हैव सोशल रिसर्च, जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और सोशल रिसर्च को समझेंगे। यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो यहाँ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जैसे कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे हम स्ट्रक्चरल इश्यूज देखेंगे, प्रॉब्लम और इश्यूज और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ टॉपिक हैं। और यहाँ आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। तो दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स जो हमें देखने हैं, राइट। लेकिन देखो, सिर्फ सिलेबस का पता होने से काम नहीं चलता, हमें उसकी वेटेज भी समझनी चाहिए। तो उसकी वेटेज वी हैव लेड आउट फॉर यू। इफ यू लुक, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं, जिनसे अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 7 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरीज हैं, सोशल प्रोसेसेस हैं और ग्रुप्स हैं, सोशल डेविएंस और टाइप्स ऑफ सोसाइटीज हैं। और आगे कुछ छोटे यूनिट हैं ये वाले, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने ऊपर वाले टॉपिक से आते हैं, राइट। तो हमें हमारे स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा स्कोरिंग करना है, और जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, या मान लीजिए आपकी कोई वीकनेस है सब्जेक्ट में, हमें उसको दूर करना है। वी विल ओनली फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ्स and will convert our weaknesses into strengths, right? Otherwise, what is the purpose of learning, right? तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको मैं यहाँ पे ऐप में लेक्चर्स देते हुए करवाऊंगी, और मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो यू कैन हैव अ लुक एट इट वंस अगेन बिफोर आई क्लोज इट। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालाइज करके बनाई गई है, राइट। आप I'll be giving you lectures according to this, so you can enroll in our program। 16 से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे enroll कर सकते हो। और आपको मैं ये लेक्चर्स डिटेल में दूंगी, पढ़ाऊंगी सारे टॉपिक्स, राइट। अभी आगे हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर नाउ। सबसे पहले प्रिपरेशन में हमारे लेक्चर्स हैं, जो आपको डिटेल में मिलेंगे हर टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं, कुछ यहाँ पे मैंने दी हैं आपको, ये 3 रेफरेंस बुक्स जो काफी अच्छी हैं और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। क्योंकि प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट लेक्चर्स, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए, राइट। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनता, क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। सो यू कैन look up for these books, you can note down these books, आप इनका नाम नोट डाउन कर सकते हो। लेक्चर्स जो है वो आपके 16 से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे करना है, क्या करना है, कौन से टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है। और मैं आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, एकदम हम बेसिक फाउंडेशन ले करके उसके ऊपर आगे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं अगर आपको एकदम से एडवांस में बताने लग जाऊंगी तो फिर बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, और आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बहुत अच्छा है, और बहुत बढ़िया स्कोप है इसका। इवन आफ्टर मास्टर्स इसमें बहुत स्कोप है। आप किसी भी एमएनसी में भी अप्लाई कर सकते हो, इवन इफ यू हैव डन मास्टर्स इन योर सोशियोलॉजी। टीचिंग लाइन तो है ही है आपके पास और भी चीजें बन जाती हैं। न्यूज़पेपर एजेंसीज में यू कैन अप्लाई एज अ सोशियोलॉजिस्ट, इवन यू कैन प्रैक्टिस बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट आफ्टर यू गेट अ प्रॉपर लाइसेंस, राइट। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स थी। अब हम आपको कैसे हेल्प करेंगे, सबसे पहले वील डिलीवर यू लेक्चर्स, राइट, ऑन ऑल टॉपिक्स। मैं डिटेल में आपको लेक्चर्स बना के दूंगी। हर टॉपिक को हम आराम से एनालाइज करेंगे, हम उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, राइट। और पेपर काफी आसान है, मैं आपको बताऊंगी इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कुछ चीजें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन आप कैसे लगाओगे, राइट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी हम आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपको बताऊंगी ये सब कैसे करना है। इसके अलावा मैं आपकी डाउट क्लियरेंस के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी एंड आस्क मी अबाउट दैट क्वेरी, राइट। और जहां पे भी मुझे लगा, अगर मुझे सिलेबस में कहीं पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो हम उसको ज्यादा वेटेज देके पढ़ेंगे। कुछ चीजें कम इंपॉर्टेंस वाली होती हैं तो हम उनको उस हिसाब से हैंडल कर लेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आपको कभी भी किसी रेफरेंस बुक के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, राइट।
सो दिस इज हाउ वी विल हेल्प यू ऑन द ऐप। डिटेल्ड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और आपकी हम एंड तक अच्छे से प्रिपरेशन करवा के देंगे, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो पढ़ा है वो वही बेस्ट है और वही पेपर में आएगा। सो दिस बिलीव, दिस कॉन्फिडेंस इज बिल्ट ओनली बाय नॉलेज। और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओ जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ओरिएंटेशन क्लास में हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में आ गई है, हमने कैसे करना है। और वेटेज आपने देख लिया है ऑफ वेरियस टॉपिक्स, और आपका सिलेबस भी आपके सामने है। मैंने आपको अभी बताया है आज की क्या क्या सिलेबस है आपका। हम उसी हिसाब से प्रेपरेशन करेंगे, हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने लेक्चर्स जो है उनकी फॉर्मेशन करेंगे। और आप हमारे ऐप में इनरोल कर सकते हो। 16th से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा आपको ओरिएंटेशन में हमें बता देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें आइडिया नहीं होता, हम कोर्स ले लेते हैं कि आगे करना क्या है, राइट। सो आगे क्या करना है ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ। यू कैन लुक अप टू इट एंड यू कैन फॉलो अप अकॉर्डिंगली टू द लेक्चर्स। और आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, हम आपकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपने अगर कोर्स ले लिया तो आप ये चिंता मुझ पे छोड़ दो कि सिलेबस कैसे करवाना है, कौन सा टॉपिक कब करवाना है। आई लुक अप टू ऑल ऑफ इट एंड आई टेक केयर कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। और आई होप कि हमने ये जो जर्नी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम एक सक्सेसफुल एंड पे जाके खत्म करें। थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।